Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back to biology class of class 8. क्लास 8 के बायोलॉजी क्लास में वंस अगेन मैं आपको वेलकम करता हूं। हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। करियर्स इन बायोलॉजी। बिफोर स्टार्टिंग today's topic, I'm going to recall you the previous topics. पिछले टॉपिक हमने पढ़े थे। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डिफाइन बायोलॉजी एंड व्हाट आर द मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी के मेजर डिविजन्स क्या हैं, उसमें आप लोगों ने सीखा था बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ life, and there are major 3 divisions of biology. The first one, zoology. Zoology is the study of animal. The second one, botany. Botany is the study of plants, and the third major division is microbiology. Microbiology is the study of microorganisms. After this, we have discussed different branches of biology. The different branches of biology are, we have discussed morphology. Morphology means the study of shape. Morphology means the study of shape. The second branch of biology is anatomy. Anatomy is the study of internal structure of organisms. The third one is histology. Histology means the study of tissues. The fourth one, physiology. Physiology, the study of functions of organs. The study of functions of organs. Next one, embryology. Embryology is the study of embryo. Next, taxonomy. Taxonomy is a branch of biology which deals with the study of classification and naming of organisms. Taxonomy deals with classification and naming of organisms. Cell biology, the study of cell, is called cell biology or cytology. Paleontology. Paleontology is defined as the study of fossils. The study of fossils is called paleontology. Paleontology has further 2 sub branches. The first one, paleobotany. Paleobotany deals with the study of fossils of plant. The next sub branch is paleozoology. Paleozoology deals with the study of fossils of animals. Next branch is entomology. Entomology is the study of insects. Next one, genetics. Genetics is a branch of biology which deals with the study of transfer of hereditary characters from parents to offspring. From parents to offspring. The transfer of hereditary characters from parents to offspring. Biotechnology is the next branch of biology. Biotechnology deals with the study of the use of living organisms or microorganisms for the welfare of mankind. For the welfare of mankind. Environmental biology. Environmental biology is the branch of biology which deals with the study of environment or ecosystem. This is also called ecology. Next one is parasitology. Parasitology is the branch of biology which deals with the study of parasites. The branch of biology which deals with the study of parasites are called parasitology. Parasites, you have learned, parasites are those organisms which cause diseases
in plants and animals. Those organisms which produce diseases in plants and animals are called parasites. And the second one is sociobiology. Sociobiology is basically the branch of biology in which we study the social animals like humans, ants, and bees. And the last one is pharmacology. The last one is pharmacology. Pharmacology is a branch of biology which deals with the study of drugs. इसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं. In other word we can say this is the study of medicine या ड्रग्स जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये फार्माकोलॉजी कहलाता है. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक था द लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंसेस. इसमें आप लोगों ने सीखा कि बायोलॉजी जो है ये दूसरे फील्ड ऑफ साइंस के साथ भी ताल्लुक रखती है. यानी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ दूसरे फील्ड ऑफ साइंस का नॉलेज भी होना चाहिए. फर्स्ट वन था फिजिक्स. फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? फिजिक्स हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है, इसका पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि बायोलॉजी में या लिविंग बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसको समझने के लिए हमें फिजिक्स के प्रिंसिपल्स जो है उसको हमने इस्तेमाल करना होता है, उसके टेक्निक्स हमने इस्तेमाल करने होते हैं, तभी ये प्रोसेस जो है वो हम समझ सकते हैं. नेक्स्ट जो फील्ड ऑफ साइंस है विच इज़ क्लोजली रिलेटेड विद बायोलॉजी वो है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री बेसिकली किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको समझने के लिए केमिस्ट्री ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम बेसिकली रिएक्शंस पढ़ते हैं. तो लिविंग बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. यही मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम तभी समझ सकते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री का नॉलेज होगा. अगला फील्ड ऑफ साइंस जो है विच इज़ क्लोजली रिलेटेड विद बायोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड ज्योग्राफी. ज्योग्राफी और बायोलॉजी के रिलेशनशिप से जो डिसिप्लिन बनता है उसको बायोज्योग्राफी कहा जाता है. बायोज्योग्राफी हमें ऑर्गेनिजम्स के आप कह सकते हैं हैबिटेट्स के बारे में बताता है, उनके हैबिट्स के बारे में बताता है और उनके बॉडी के ऊपर क्लाइमेट के असर के बारे में बताता है. हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं स्पेस और टाइम के लिहाज से हम पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ एनिमल्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल पोलर बियर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं. नेक्स्ट आपने एग्जांपल पढ़ा था कि मॉस्कीटोज जो मलेरिया कॉज करते हैं या डेंगू फीवर कॉज करते हैं. मलेरिया, खासकर मलेरिया कॉज करने वाले जो मॉस्कीटोज हैं इनकी अफजाइश तेज़ हो जाती है जब टेम्परेचर जो है ये मॉडरेट हो जाता है और एयर में जो है ये ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. ठीक है जी. वार्म एंड डैम्प एरियाज के अंदर इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो तेज़ हो जाती है. तो ये समझने के लिए हमें ज्योग्राफी वो पढ़नी पड़ती है. नेक्स्ट आपके पास जो है वो बायोस्टैटिस्टिक्स हैं. स्टैटिस्टिक जो है ये रिलेशनशिप है बिटवीन बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक का. स्टैटिस्टिक मैंने आपको कहा था कि ये फिजिक्स का एक सब ब्रांच है. स्टैटिस्टिक में बेसिकली फार्मूलेज होते हैं, वो फार्मूले हम अप्लाई करते हैं जब हम बायोलॉजी में रिसर्च करते हैं. कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें आ जाता है उसको सॉल्व करने के लिए हम स्टैटिस्टिक के टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, उनके फार्मूलों को इस्तेमाल करते हैं. तो उससे एक रिलेशनशिप या कह सकते हैं कि एक इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़ जो है वो डेवलप हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री. और लास्ट आपके पास जो इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस है वो है बायो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स और या हम कह सकते हैं कि बायो इकोनॉमिक्स वो फील्ड है जो हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी साइंटिस्ट जब काम करता है तो वो उसके लिए कैलकुलेशंस करता है कि फॉर एग्जांपल वो एक नया प्लांट डेवलप करने जा रहा है या कोई नया एनिमल जो है उसको ब्रीड करने जा रहा है, जो क्लोनिंग के थ्रू होता है या जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के थ्रू होते हैं. तो वो उस पर कैलकुलेशंस करते हैं कि जब मैं ये नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, नए प्लांट और एनिमल जो है इसको डेवलप कर रहा हूँ, इस पे कॉस्ट कितना आ रहा है और अगर मैं इसको डेवलप
कर लूं तो इसका फायदा कितना आएगा। ये तमाम कैलकुलेशन जो है वो साइंटिस्ट करते हैं और इसके लिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज जो है वो जरूरी होता है। तो इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी जो है इसके इंटर रिलेशनशिप से जो फील्ड ऑफ साइंस बनता है इसको कहा जाता है बायो इकोनॉमिक्स। तो ये आपके पास इंटर जो लिंकेजेस थी बायोलॉजी वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ थी, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। इसके बाद हमारा आज का लेक्चर जो है वो शुरू हो जाता है। आप अगर अपने बुक खोल लें तो बुक में पेज नंबर 5 पे आपके पास मौजूद है करियर्स इन बायोलॉजी, जो आज का हमारा टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। व्हाट इज करियर इन बायोलॉजी? याद रखें, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, कोई साइंस पढ़ रहा है तो कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, इन तमाम स्टडीज के पीछे एक मोटिव होता है कि आगे जाके जब आप अपनी एजुकेशन पूरी कर लेंगे, आगे जाके जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो आगे लाइफ में आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे आपको फायदा दे सकता है। तो ये टॉपिक इसी हवाले से है। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद वो प्रैक्टिकल लाइफ के कौन कौन से जो फील्ड है, जॉब के जो फील्ड हैं, उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको बताएगा कि कौन सा फील्ड जो है वो आप एज ए करियर चूज कर सकते हैं आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी। ठीक है जी, तो आते हैं, मैंने आपके लिए पहले से लिखा हुआ है डिफरेंट काइंड्स ऑफ करियर्स। फर्स्ट करियर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी इज मेडिसिन एंड सर्जरी। बायोलॉजी पढ़ने के बाद या जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए सबसे फर्स्ट चॉइस होती है मेडिसिन एंड सर्जरी। इसकी डिग्री को कहा जाता है एमबीबीएस। ये एमबीबीएस की डिग्री होती है। इसी में जो है वो स्टूडेंट्स मेडिसिन और सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं। इस फील्ड का ताल्लुक होता है, इसमें जो स्टडी करने वाला है उसको हम कहते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर का काम आप जानते हैं। डॉक्टर का बेसिक फंक्शंस होता है टू डायग्नोज डिजीजेस एंड टू ट्रीट देम। डिजीजेस को डायग्नोज करना और उसको ट्रीट करना। ठीक है। दूसरा सर्जरी है। सर्जरी ये आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, मेडिसिन एंड सर्जरी। सर्जरी वो फील्ड ऑफ साइंस है या बायोलॉजी है जिसमें एक डॉक्टर बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड ऑर्गन्स को रिमूव करता है। यू कैन से इसमें बॉडी की चीरफाड़ जो है वो होती है, तो इसको कहा जाता है सर्जरी। तो तमाम बायोलॉजी पढ़ने वालों के लिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। इस फील्ड में जो डिग्री जो है जो अवार्ड की जाती है उसको एमबीबीएस कहा जाता है, और उनका काम होता है टू डायग्नोज डिजीजेस एंड टू ट्रीट देम एंड ऑल्सो दे रिमूव इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द बॉडीज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपके पास जो फील्ड है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं वो है फिशरीज। फिशरीज फॉर्म्स आपने देखे होंगे। फिशरी फॉर्म्स वो होते हैं जहां पे फिश को ब्रीड किया जाता है। इन अदर वर्ड वी कैन से फिश को प्रोड्यूस किया जाता है। ये बायोलॉजी का एक सब फील्ड में आता है। अगर कोई इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है तो वो स्टडी करेगा ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी आप जानते हैं, द स्टडी ऑफ एनिमल। इस फील्ड में ज़ूलॉजी आप पढ़ेंगे और ज़ूलॉजी में आप फिश के लाइफ के बारे में आप पढ़ते हैं। फिश के हैबिट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, फिश के जेनेटिक्स के बारे में आप पढ़ते हैं, इनके न्यूट्रिशंस के बारे में आप पढ़ते हैं और इनके डिजीजेस के बारे में आप पढ़ते हैं। तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद फिश के मुतल्लिक आप एक्सपर्ट बन जाते हैं और आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है, फिशरीज के अंदर आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है। आप अपनी फिशरीज जो है अपना एक फॉर्म भी खोल सकते हैं, क्योंकि आफ्टर स्टडिंग फिशरीज यू बिकम द एक्सपर्ट्स ऑफ फिश। फिश के लाइफ साइकिल, उसके तमाम जो हैबिट्स हैं उनके आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो आप ये फील्ड ऑफ
साइंस जो है इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं एज ए करियर। नेक्स्ट वन एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर फील्ड आप जानते हैं हमारे यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड जो है ये एक बहुत बड़ा फील्ड है और हम अक्सर सुनते भी और कहते भी हैं कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। एग्रीकल्चर के जॉब यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद आपके जॉब कहाँ पे हो सकते हैं? आप एज ए एग्रीकल्चरिस्ट आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एग्रीकल्चर बैंक होते हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। लाइफ स्टॉक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे एनिमल्स के ऊपर रिसर्च होता है और नए एनिमल जो है उसको ब्रीड किया जाता है, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है बच्चों। एग्रीकल्चर आप पढ़ेंगे, इसका ताल्लुक होता है बॉटनी के साथ। आप बॉटनी पढ़ते हैं, इसमें बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में आप पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जब उसके आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर जॉब मिल सकता है। ये फील्ड आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास जो फील्ड है जिसको आप अपना करियर जो है एज ए करियर आप अडॉप्ट कर सकते हैं वो है एनिमल साइंसेस। एनिमल साइंसेस का ताल्लुक भी ज़ूलॉजी के साथ है। ये पढ़ने वाले अपनी ग्रेजुएशन जो है वो करते हैं इन द फील्ड ऑफ ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे क्या पढ़ा जाता है? यहाँ पे एनिमल के बारे में पढ़ा जाता है, एनिमल के ब्रीडिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा जाता है, उनके डिजीजेस के बारे में पढ़ा जाता है, उनके जेनेटिक्स के ऊपर काम होता है, उनके जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ऊपर काम होता है। यहाँ पे आपके पास जो जॉब मिल सकते हैं इनका काम होता है ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स को आपस में इंटरब्रीड करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के एनिमल को जो है वो बड़ा करवाते हैं, उसकी निगहदाश्त करते हैं ताकि उससे खुराक हासिल हो सके, दूध जो है उससे हासिल हो सके, ठीक है जी। इस फील्ड में आपको जॉब मिल सकते हैं। एनिमल साइंसेस पढ़ने के बाद आपको एनिमल्स के जो बड़े फॉर्म्स होते हैं वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। नेक्स्ट वन हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक बॉटनी के साथ है। ये हम इन द फील्ड ऑफ बॉटनी के साथ इसका ताल्लुक होता है। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हैं या हॉर्टिकल्चर को पढ़ने के बाद आपका जो जॉब होता है वो आप जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, ये बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री भी ताल्लुक रखती है द स्टडी ऑफ प्लांट्स के साथ। फॉरेस्ट्री पढ़ने के बाद आप फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट हमारे यहाँ या हमारे मुल्क में एक डिपार्टमेंट है जिनका काम है जंगलात की देखभाल करना, नए ट्रीज लगाना, जो जंगल डैमेज हो चुके हैं उसको दोबारा रिस्टोर करवाना। ये तमाम फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का काम होता है। तो यहाँ पे आपको जो है वो जॉब मिल सकते हैं। इसका बेसिक काम होता है ग्रोइंग न्यू फॉरेस्ट एंड द रिस्टोरेशन ऑफ प्रीवियस फॉरेस्ट। और लास्ट वन जो है दिस इज फार्मिंग। लास्ट आपके पास है फार्मिंग। फार्मिंग हम कहते हैं कि फार्म्स फॉर एनिमल ब्रीडिंग, पोल्ट्री, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारे मुल्क में या आप अब्रॉड भी ले सकते हैं, बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं जो इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं कि वहाँ पे एनिमल्स की ब्रीडिंग हो। एनिमल की ब्रीडिंग हो मतलब ये हुआ कि एनिमल्स को आपस में इंटरब्रीड करते हैं और उससे नए ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं। पोल्ट्री डिपार्टमेंट, चूजे जो हम कहते हैं, इनके फॉर्म्स हैं, यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। और ऐसे फॉर्म जहां पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वहां पे आपको जॉब मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों।
मैं दोबारा आ रहा हूं. Once again I am going to summarize the topic. The topic is career in biology. It's mean after studying biology, which field of science or which department you can join as your career. So these are the different kinds of careers which you can adopt. First one is medicine and surgery. You can become a doctor. You will diagnose and treat diseases. You can be a fishery manager. You can join a fishery farm as a fishery manager. You can be agriculturist. You can join the agriculture department. You can be the experts of animal sciences. You can join the livestock department. Horticulturist. You can become horticulturist. You can also join the forest department. And the last one, you can join the farming field. ठीक है बच्चों, तो ये मुख्तलिफ किस्म के फील्ड है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. एज ए करियर आप इनको चूज कर सकते हैं. ठीक है, आई होप कि समझ आ गई होगी. यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी इसका होमवर्क लिखा हुआ है. यहाँ पे देख ले, होमवर्क आपका ये है, विच करियर वुड यू लाइक टू अडॉप्ट एंड व्हाई. आपने लिखना है बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप इन करियर्स में कौन सा करियर जो है उसको अडॉप्ट करेंगे और ये फील्ड जो है आप क्यों चूज करना चाहते हैं. ठीक है, विच करियर पाथ वुड यू लाइक टू चूज एंड व्हाई, ये आपने लिखना है और उसी पुराने तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू मेरे साथ शेयर करना है. ठीक है, थैंक यू सो मच. दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे.